मैम आप म्यूट है, अनम्यूट कर लें प्लीज। Good morning, everyone. So there was a question. Can you explain short run and long run? What do you want to ask? Actually, short run and long run में क्या चीज? So can you please clarify that thing? So till the time, I'll just give you the brief of the last class. Last class we were doing production function. प्रोडक्शन फंक्शन में हमने आइसोक्वेंट किया था, सॉरी टोटल प्रोडक्ट किया था, मार्जिनल प्रोडक्ट किया था, एवरेज प्रोडक्ट किया था. सो द टोटल प्रोडक्ट वाज, वी डिड द आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, land, labor, capital, entrepreneur, etc. Right? So production is a function of the various factors, and last में हमने किया था the different concept, that is total product, average product and the marginal production. Total production is the sum of the all the production, या totality of all the production produced by a producer with the given resources, with the factor of production. Marginal production is the change in the total production, and average is the per unit of the total production. Yeah, by implying one extra unit of labor or capital, how much total production will be there. After that, we did the three stages of production. The law of variable proportion that operates in three stages. The first stage, where total production increases at an increasing rate. Second stage ends where total production is maximum. And third stage is the where average production, marginal production is negative or total production starts declining. Okay, so this is the average production. Okay, and we use the differentiate. This is the average production and this is the marginal production. So the equilibrium, the first stage of production, second stage and the third stage. Okay, the first stage where total production increases and when total production increases at a increasing rate. So then total production is increasing at a declining rate, and then the total production starts declining, या marginal production जो है that comes out to be negative. ठीक है? So the ideal stage of the production, I told you, is the second stage of the production, because यहाँ पे average production भी positive है, marginal production भी positive है, and no doubt the total production is also increases, not the increases at increasing rate, but actually it increases. ठीक है? So this was the three stages of production. G. Okay. So this was the three. In the short run, three stages of production in the short run. Now we will move towards the long period. Short run period, I don't know, मैं इसी चीज को explain कर देती हूँ. Short run is a period कुछ factors fix हैं, कुछ variable हैं, but whereas in the long period all the factors of production are variable. There is no fixed factor. Okay. So now in the long period we have to find out the producer's equilibrium.
that can be find out with the help of the isoquant and the isocost line. Now first thing is the isoquant. क्या है? Isoquant बिल्कुल indifference curve का जो है opposite है. Indifference curve was for the consumer. Isoquant was for the producer. ठीक है? Indifference curve में आपको क्या बताता है? Satisfaction level. Isoquants में क्या बताता है? जो है प्रोडक्शन कितनी एक आउटपुट या फिर जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, दैट वाज टोल्ड बाय द आइसोक्वेंट. ठीक है, टिल नाउ एनी क्वेश्चन? Okay, there is no question till now, so let me move further. Just like the indifference curve, जैसे हमारा indifference curve था, downward sloping, convex to region, same is the isoquant. Isoquant की definition क्या है? It's a combination of two factors of production. जैसे यहाँ पे मैंने two factor of production लिए, एक labor, एक capital. It's a combination of two factors of production which produces same level of output, yeah, which gives the same level of output to the point. यहाँ पे indifference कब ने हमने किया था output की instead of the output. What we were saying about the satisfaction level. Labor capital factor of production की जगह पे क्या था? Two commodities. ठीक है? When we move from the one point to the another point, that is from the point A to point B, means we are sacrificing few units of capital. मैंने कुछ unit capital के decrease किए to get additional units of labor. That is what we call it as a marginal rate of technical substitution between two factors of production, which is equals to change in capital. जैसे indifference curve में किया था, change in commodity X divided by change in labor. ठीक है, वहां पे किया था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा के बाय डेल्टा एल है. वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है. वहां पे टू कमोडिटीज था, यहाँ पे टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कॉम्बिनेशन ए क्या गिव कर रहा है मुझे? One unit of labor plus 9 units of capital gives me 100 units of output. Combination B पे combination B means here 4 unit of labor plus 4 unit of capital also gives me 100 units of output. So मैंने कितने गिव अप किए यूनिट कैपिटल के? मैंने 3 यूनिट किसके गेन किए? लेबर के. एंड प्लस मैंने कितने लॉस किए कैपिटल के यूनिट्स? आई लॉस 5 यूनिट्स ऑफ द कैपिटल. ठीक है, दिस इज माय रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, so this is the marginal rate of technical substitution, जो क्या है? Sacrifice of capital, sacrifice of one factor, so that additional unit by adding additional unit of other factor, which gives me the same level of the output to the producer. ठीक है,
Any question till now? Am I audible, guys? Am I audible, guys? Properties इसकी और indifference curve की same है, that is the downward sloping, convex to origin, two isoquants when never cuts each other. Higher the isoquant, higher the level of output, lower the isoquant, lower the level of the output. That means by using different methods of output, so isoquant क्या show करता है, उसके various combinations. ठीक है? नेक्स्ट है रिटर्न्स टू स्केल. जो लॉ हमारा लॉन्ग पीरियड में अप्लाई होता है, उससे पहले सच प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कर लेते हैं एक बार, साथ ही करा दे. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक बार बता देती हूँ, उसके बाद आई विल मूव टुवर्ड्स द लॉन्ग पीरियड. अगेन we are having two factors of production. ठीक है? I told you in the last class, I guess, के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस में हमने इंडिफरेंस का आइसोक्वेंट्स बनाने हैं, और जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का केस है उसमें हमने क्या बनाना है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ आइसो कॉस्ट लाइंस. ठीक है? सो आइसोक्वेंट, तो क्योंकि प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट. सो इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E. ठीक है? वेयर प्रोड्यूस दोनों जहां पे टेंजेंट है, दैट इज द स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन एंड द स्लोप ऑफ द आइसोक्वेंट इज बोथ आर इक्वल. आई होप इट्स क्लियर. वैसे लास्ट क्लास में भी हमने ये चीज की थी. ठीक है? Now coming back to the long period production, which is returns scale भी कहते हैं. और returns to scale कहते हैं because in the long period there is no fixed factor, तो scale of production can change. Returns to होगा तो वो law of variation है, that is the period law. ठीक है? So returns to scale says जैसे हम आउटपुट एक्सपैंड करते हैं, जैसे मैं इनपुट्स इंक्रीज, तो पहले समझ लो, जैसे जैसे मैं इनपुट्स इंक्रीज करती हूँ मेरी आउटपुट इंक्रीज करती है. ठीक है? आउटपुट जो है मेरी इंक्रीज 3 वे से करेगी. मे बी विद द सेम लेवल ऑफ इनपुट मैं पहले जितना प्रोड्यूस कर सकूं, पहले से कम प्रोड्यूस कर सकूं, या पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकूं. एग्जांपल लेते हैं. आप सब पढ़ाई करते हो, राइट? आपने सोचा मैं एक आवर पढ़ाई करूंगा, एक आवर में आपकी प्रोडक्टिविटी निकली एक चैप्टर की. ठीक है? अब आपने नेक्स्ट डे क्या किया, आपने वो एक आवर को कन्वर्ट कर लिया 2 आवर्स में. अब प्रोडक्टिविटी क्या निकली, मे बी एक ही चैप्टर आपको समझ में आया, मे बी एक से ज्यादा समझ में आ गए, या एडिशनल वो 1 घंटे की बात कर रहे हो, 1 आवर तो है ही है जो एक चैप्टर कर चुके हो, या फिर एक पूरा चैप्टर भी आपको समझ में, वो एक्स्ट्रा पूरा चैप्टर अभी आपको समझ में नहीं आया. ठीक है? These 3 possibilities can be there. तो इस 3 पॉसिबिलिटीज, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे सामने, या तो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगी, या पहले से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, या पहले से कम होगी. So that's why we are having 3 returns to scale: increasing returns to scale, constant returns to scale, and
decreasing returns to scale. So increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale भी कहते हैं इसको, और decreasing returns to scale भी कहते हैं. So these three different returns to scale operates in the long period. Means तीन possibilities हैं long period में production को expand करने की. Now let's discuss one by one. First of all, the increasing returns to scale. नहीं, पहले कांस्टेंट करते हैं, वो सबसे इजी है, जल्दी समझ में आ जाता. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आप जो डायग्राम्स मैं अभी बना रही हूँ आप पेपर पे बनाओगे तो बेटर है कि आप स्केल और पेंसिल यूज करके सेम लाइन से यूज करना, क्योंकि स्केलिंग इजी रहेगी आपके लिए. कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मींस, लेट्स सपोज 10 units of labor plus 15 units of capital gives me 100 units of output. किसी कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, 10 यूनिट्स उसमें लेबर के लगाए, 15 यूनिट्स कैपिटल के लगाए और मेरे पास टोटल प्रोडक्शन कितनी आ गई, 100 यूनिट्स की. ठीक है. कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या कहता है, अगर मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डबल कर देती हूँ, एक्चुअली डबल हो गए तो आउटपुट जो है वो मेरी डबल हो गई. ठीक है. अब ये भी पॉसिबिलिटी है, ये डबल से ज्यादा भी हो सकती है, ये डबल से कम भी हो सकती है. ठीक है. अगर तो एग्जैक्टली डबल हो गई तो हम किस में हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. जो इंडस्ट्री है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में ऑपरेट कर रही है. ठीक है. अगर डबल से ज्यादा होगी तो दैट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अगर डबल से कम हो गई तो दैट मीन्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. सबसे पहले कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है. दिस इज अ स्केल लाइन. स्केल लाइन क्या होता है कि जो मेरी टोटल प्रोडक्शन को एग्जैक्टली 50% से डिवाइड कर देती है. ठीक है. सो दिस गिव्स मी 100 units of output. ठीक है. This gives me 100 units of output. So that means OA. OA means यहाँ पे इतने लेबर हैं, सॉरी कैपिटल है, इतना लेबर है. ठीक है. OA points on the expansion path gives me 100 units of output. Output डबल, मैंने इनपुट डबल किए. अगर आउटपुट डबल हो गई in that case constant returns to scale means OA is exactly equals to the AB. ठीक है. so distance constant returns to scale का OA और AB का same होगा. so that means firms are operating under the constant returns to scale in the long run. ठीक है. so constant returns to scale means the distance on expansion path means दो आइसो पॉइंट के अंदर डिफरेंस जो है वो सेम है, मतलब कि दो आइसो पॉइंट पैरेलल होंगे. ठीक है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये डिस्टेंस ओके मैं पहले एक और चीज समझा देती हूँ, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की समझा दी. पहले मुझे ये बताओ कि ये चीज आपको अंडरस्टूड होगी है कि कांस्टेंट इंक्रीजिंग रिटेन मींस फॉर प्रोड्यूसिंग, नहीं,
for when firms क्या करती है, डबल करती है अपने इनपुट्स, तो अगर आउटपुट डबल है, तो उस केस में क्या है हमारे पास, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सो अगर आउटपुट जो है मोर देन डबल, देन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एंड अगर आउटपुट लेस देन डबल है, then we have having decreasing returns to scale। इसी चीज को एक और वे से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब दूसरा वे क्या है कि मैंने इनपुट्स, पहला वो इस चीज लेते हैं, सॉरी 10 units of labor plus 15 units of capital gives me the 100 units of output। सेकेंड, अब मेरी आउटपुट सेम है, मींस मैंने आउटपुट को डबल कर दिया 200। आई नीड लेसर एडिशनल, उससे पहले से कम यूनिट्स चाहिए मुझे, मींस 18 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 25 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। नाउ आई नीड टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो दैट मींस एडिशनल कितने चाहिए थे मुझे, 8 यूनिट ऑफ लेबर प्लस 10 यूनिट ऑफ कैपिटल। अब देखो पहले मैं 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। नाउ एडिशनल 8 एंड 10 से मैं एडिशनल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। सो दिस इज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मींस इस वे में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम अगर आउटपुट को डबल कर रहे हैं, वी नीड लेसर एंड लेसर इनपुट्स टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। अगर मुझे ये इनपुट्स पहले से ज्यादा चाहिए, मींस 25 यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस 40 यूनिट्स ऑफ कैपिटल गिव्स मी दी 200 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इन दिस केस मुझे पहले से ज्यादा इनपुट्स रिक्वायर्ड हुए, तो वी आर इन ए डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। कांस्टेंट के लिए सेम ही है, फिर भी डबल ही होंगे inputs, 30 units of capital, this is constant returns to scale, ठीक है। इंक्रीजिंग मुझे पहले से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही है, डिक्रीजिंग मुझे पहले से ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देनी पड़ रही है, कांस्टेंट जब सेम प्रोडक्शन यूज करें। तो मैं ये वाली डेफिनेशन यूज करूंगी एक्सप्लेनेशन में डायग्रामेटिकली। ये इजी होती है थोड़ी सी। आउटपुट 100 यूनिट्स, अब ये गैप जो है, पहले जो गैप सेम था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में ये गैप कम हो जाएगा, ठीक है, गैप कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स OA is greater than AB in case of increasing returns to scale, and in terms of decreasing returns to scale ये गैप बढ़ जाएगा। So this is OA and this is B. So OA is less than AB, ठीक है। So this is decreasing returns to scale. Simple terms, इन दोनों का गैप जब सेम है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, जब ये गैप कम हो, एडिशनल कम होता जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अगर ये गैप इंक्रीज होता जा रहा है, देन वी आर हैविंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को हम डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री भी बोलते हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को हम इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री भी बोलते हैं. ठीक है. एनी क्वेश्चन? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मींस के सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपको सेम लेवल ऑफ इनपुट प्रोड्यूस चाहिए. जैसे कि एग्जांपल दूं तो आपको पहले 1 घंटे में आपने एक चैप्टर पढ़ा, दूसरे 1 घंटे में भी एक चैप्टर पढ़ा, तो ये कांस्टेंट है. अगर दूसरे घंटे में आपने एक चैप्टर से ज्यादा पढ़ लिया तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. अगर दूसरे आवर्स में एक चैप्टर से कम पढ़ लिया तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. Okay, so now let's start with the cost. पीरियड्स प्रोडक्शन है तो उसी हिसाब से कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? आउटपुट के साथ. जितनी आउटपुट प्रोड्यूस होगी उस हिसाब से कॉस्ट होगी. सो आउटपुट भी 2 पीरियड्स में है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. सो कॉस्ट भी 2 पीरियड्स में है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. ठीक है. शॉर्ट रन कॉस्ट वी आर हैविंग 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. सो यहाँ पे फिक्स फैक्टर के अगेंस्ट फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर के अगेंस्ट वेरिएबल कॉस्ट. लॉन्ग पीरियड में वी आर हैविंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर. सो वी आर हैविंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. आई होप अभी वॉइस क्लियर है मेरी. So total cost is equals to fixed cost plus variable cost. Cost against fixed factor plus cost against variable factor is total cost in the short run. पहले fixed cost define करते हैं. Fixed cost remains fixed whatever is the level of the output. अगर आउटपुट 0 है, फिक्स कॉस्ट 100, आउटपुट इंक्रीजेस, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. आउटपुट कुछ भी हो, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी. इट विल नॉट चेंज. सो द कर्व विल बी लाइक दिस. ठीक है. On the other hand, variable cost increases with the increase in output. ठीक है. Variable cost increases with the increase in output. So the total cost is nothing but fixed cost plus variable cost. Let's suppose एग्जाम्पल लेते हैं. आउटपुट 0, 20, 30. वेरिएबल कॉस्ट 0, आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी. 10 आउटपुट पे फॉर एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट मेरी 100 है, 10 180 है, देन 250. ठीक है. सो द वेरिएबल कॉस्ट increases with the increase in the output and decreases with the decrease in the output. Total cost is nothing but the
fixed cost plus variable cost. Fixed cost 100 है, so the total cost is 0 plus 100. Time. And we are but is cost and to be changed variable आपकी जो now I don't answers just नहीं है, just wait आ जाएंगे.
सॉरी इज फाइन नाउ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दोनों साइड पे जब हम Q से डिवाइड करेंगे देन व्हाट विल गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब को ऐड कर देंगे देन व्हाट विल गेट एवरेज कॉस्ट। ये फॉर्मूले याद रखो। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल कराती हूँ क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है आपका, तो कंफर्म हो चुका है, तो आई अज्यूम दैट न्यूमेरिकल पार्ट आ सकता है, सो वी विल लाइक टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट एज वेल। ये जो मैंने ग्रीन टिक्स किए हैं ये सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखना है, तो इन सब फॉर्मूलेज को अप्लाई करके मैं एक ही न्यूमेरिकल में आपको सारा क्लियर करा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल किसी भी फॉर्म में आए, आप उसी एक न्यूमेरिकल में से सारी फॉर्म्स जो हैं बेसिकली जो है फाइंड आउट हो जाएंगी। सो we are having 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है? टोटल कॉस्ट, अब देखो मेरे पास लाइंस नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक लाइन लगा के दे रही हूँ, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो किसकी वैल्यू गिवन है और किसकी नहीं, क्योंकि मैं कुछ वैल्यूज मिस कर रही हूँ। टोटल कॉस्ट 10 है, देन हमें नहीं दी है, देन हमें नहीं दी है, देन हमें नहीं दी है। फोर्थ यूनिट पे उसने फिर से हमें टोटल कॉस्ट दी है, दैट इज 38। फिर उसने हमें नहीं दी, देन उसने हमें फिर से नहीं दी, 5th की नहीं दी, 6th की नहीं दी, 7th की दी है, दैट इज 56। 8 की उसने स्टिल हमें नहीं दी। वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है? सेकेंड टर्म हमें गिवन है AC एवरेज कॉस्ट, पहले की हमें नहीं गिवन है, ठीक है? दूसरे की हमें गिवन है, दैट इज 20। उसके बाद हमें गिवन है लेट्स 14, उसके बाद हमें नहीं गिवन, ठीक है? एंड ऑल्सो नहीं गिवन, यहाँ पे भी नहीं गिवन है, यहाँ पे उसने हमें 6 यूनिट की जो है वो गिवन है 8 एंड देन हमें नहीं गिवन, ठीक है? सो हमें जो एवरेज कॉस्ट गिवन है वो है फर्स्ट यूनिट की, सेकेंड यूनिट की एंड 6th यूनिट की, ठीक है? देन कमिंग टुवर्ड्स द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? यहाँ नहीं गिवन, यहाँ नहीं गिवन, यहाँ नहीं गिवन, ये जो गिवन है हमें कौन से यूनिट की? थर्ड यूनिट की जो मार्जिनल कॉस्ट गिवन है वो है 6 यूनिट, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पे भी नहीं गिवन है, 5th यूनिट की गिवन है, हमें 5th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, दैट इज दी 4। उसके बाद 6 की नहीं गिवन, 7 की नहीं गिवन, 8 की हमें फिर से गिवन है मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज 16। सो मार्जिनल कॉस्ट हमें किस किस की गिवन है? थर्ड की, 5th की एंड 8th यूनिट की, ठीक है? ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें एक तो ब्लैंक्स फिल करनी है, ठीक है? सारी की सारी जो साथ हम एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज, बाकी ब्लैंक
सबसे पहले टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट केस में मेरी वेरी है टोटल कॉस्ट होगी फिक्स कॉस्ट, पहली टर्म में फिक्स कॉस्ट एंड मुझे इसके लिए दोबारा की जरूरत नहीं है, से लेके 8 यूनिट तक कॉस्ट ठीक है। डिवाइडेड बाय क्यू। अब इसको मैं रीराइट करूं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्यू। अब यहाँ पे देखो 20 यूनिट्स गिवन था, 20 थी एवरेज कॉस्ट। अब मैंने इसको 20 से अब मुझे इसको किस पे लेके आना है, टोटल कॉस्ट पे। सो टोटल कॉस्ट मींस एवरेज कॉस्ट दैट इज द 20 मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी कितना है 1। सो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी यहाँ पे 20, ठीक है। अब 20 माइनस 10, फिक्स कॉस्ट तो मेरी 10 है ना, 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड पॉइंट में फिर से AC गिवन है, मैं फिर से यही करूंगी, AC 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज multiplied by 2 that is 28 which is equals to the total cost, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे अगेन 28 minus 10 that is 18 मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। गॉट इट? यहां तक कोई क्वेरी? यहां तक कोई क्वेरी? ओके, सो यहां तक मैंने क्या किया, मैंने टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट से टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। अब यहाँ पे जो मुझे थर्ड यूनिट है ना, तो मुझे टोटल कॉस्ट गिवन है ना मुझे मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे पहले मैं मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर लेती हूँ। 10 चेंज इन टोटल कॉस्ट 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10, 28 माइनस 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी 28 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब ये देखो थर्ड यूनिट पे मुझे MC गिवन है और कुछ नहीं गिवन। मैं क्या करूंगी, MC के लिए से टोटल कॉस्ट इन सबको ऐड कर दूंगी। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 8 18, या फिर ये टोटल कॉस्ट है ना 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 which is equals to 34, ठीक है। यहां पे आ गई टोटल कॉस्ट और 34 डिवाइडेड बाय 3 which is equals to something 11 point something, तो वो क्या हो जाएगा मेरा एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में फिर टोटल कॉस्ट गिवन है, फिर AC फाइंड आउट कर लेंगे, MC कर लेंगे। सिमिलरली इसमें AC गिवन है, MC फाइंड आउट हो जाएगा, AC हो जाएगा, और VC क्या होगा, जैसे जैसे टोटल कॉस्ट आती जाएगी उसमें से आप 10 माइनस करना, तो बाकी की वैल्यूज आ जाएंगी। अब मैं सिर्फ बाकी आपको वैल्यूज पुट करके अब दे रही हूँ, अब बाकी कैलकुलेशंस खुद कर लेना, ठीक है। 56 एंड 72 चेक भी कर लेना। AC है 9.5, 8.4, 8 अगेन 8 एंड देन 9, ठीक है। MC है 6, 4, 4 and after that 6, 8 and 16। VC आप फाइंड आउट कर
लेना, इसमें से 10 माइनस करते जाना। हाँ, नेक्स्ट है AFC ABC। बस FC को आउटपुट से डिवाइड कर दो, you will get average fixed cost by 0, something by 0 is infinite, ठीक है। So 20 by 2 which 10 by 2 which is equals to 5, again 10 by 3 3.3, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी की भी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लेना। इसी बेस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड आउट हो जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या फिर दूसरा मेथड क्या है, जब AC फाइंड आउट है, AFC फाइंड आउट है, तो दोनों को माइनस कर दो, AVC आ जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अब आप शेप ऑफ कॉस्ट कर्व देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व्स इन द शॉर्ट रन। So here I am having output, here I am having cost, ठीक है। एवरेज कॉस्ट देखो पहले डिक्रीज कर रही है एंड देन कांस्टेंट है एंड देन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेस। सिमिलरली AVC भी ऐसे ही होगी, डिक्रीजेस, कांस्टेंट एंड इंक्रीजेस, ठीक है। AFC कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन। इनिशियली इसका रेट बहुत ज्यादा डिक्लाइन होगा, बाद में ये रेट थोड़ा कम हो जाएगा। अब आप ये चीज ध्यान रखना कि AFC कम होती जाएगी, कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट 0 नहीं होती। मार्जिनल कॉस्ट देखो पहले डिक्लाइन, एवरेज कॉस्ट के मिड पॉइंट पे इक्वल है, एंड मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी मिड पॉइंट पे इक्वल होती है। दिस इज योर MC। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1, AC increases, MC AC या फिर AVC, दोनों के लिए ये सेम है। AC या AVC कांस्टेंट, MC कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड, AC या फिर AVC इंक्रीज डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज करेंगी तो MC भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। जब कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देती हूँ, एट मिनिमम पॉइंट ऑफ AC MC के इक्वल है। ये आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप याद रखना पड़ेगा कि मिनिमम पॉइंट पे AC MC के इक्वल है। मिनिमम पॉइंट AVC और MC भी इक्वल है, ठीक है। ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, ये आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमें हेल्प करेंगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए, फर्दर फर्दर कैलकुलेशंस के लिए भी और फर्दर जो है रिक्वायरमेंट के लिए भी, ठीक है। इन द लॉन्ग रन वी डोंट हैव एनी फिक्स कॉस्ट, सो जो भी कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है।
लॉन्ग पीरियड कॉस्ट कर्व को हम इन्वेलप कर्व भी बोलते हैं। इन्वेलप कर्व क्यों बोलते हैं? रीजन इज दैट कि ये शॉर्ट पीरियड कॉस्ट कर्व्स को इन्वेलप करता है। कैसे? लॉन्ग पीरियड कंसिस्ट ऑफ वेरियस शॉर्ट पीरियड्स। लॉन्ग पीरियड कंसिस्ट ऑफ वेरियस शॉर्ट पीरियड्स। आप कितने भी यहाँ पे शॉर्ट पीरियड कर्व्स बना सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लॉन्ग पीरियड कंसिस्ट ऑफ वेरियस शॉर्ट पीरियड्स, ठीक है। इसी वजह से लॉन्ग पीरियड जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो शॉर्ट पीरियड एवरेज कॉस्ट कर्व से बनता है, अलग से नहीं बनता। जैसे लॉन्ग पीरियड मेरा 20 इयर्स का है, उसके जो शॉर्ट पीरियड्स हैं लेट्स सपोज 5 इयर्स के जो हैं 4 शॉर्ट पीरियड्स हैं, तो 4 शॉर्ट पीरियड्स के हिसाब से हमारा जो है ये लॉन्ग पीरियड कर्व बनेगा। ये किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर टेंजेंट होगा लॉन्ग पीरियड के, ठीक है, क्योंकि वो उसी का ही कहीं ना कहीं पार्ट है। लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी शॉर्ट पीरियड मार्जिनल कॉस्ट कर्व से बनता है। ये पॉइंट जहां पे दोनों टच कर रहे हैं, यहां पे जैसे ये पॉइंट है, सो सी दिस इज द SMC1, SMC2, SMC3 एंड ये पॉइंट आएगा समवेयर हियर, ठीक है, SMC, गॉट इट। सो लॉन्ग पीरियड जो है वो किसका कंसिस्ट है? वेरियस शॉर्ट पीरियड कॉस्ट कर्व्स का, ठीक है। सो इन सिंपल टर्म्स आप लॉन्ग पीरियड को डीप यू शेप बना सकते हो। ये डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ LAC is because of the economies of scale, ठीक है। Rising part of the LAC is diseconomies of economies of scale होता है जब भी हम प्रोडक्शन को एक्सपैंड करते हैं तो हमारी एडिशनल प्रोडक्शन डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, जस्ट लाइक दी अभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बताया था। सिमिलरली जैसे ही हम प्रोडक्शन एक्सपैंड करते हैं हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है डे बाय डे से, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। इसको हम आगे परफेक्ट कंपटीशन में यूज करेंगे, लाइक जहां पे हम इसका बिहेवियर और अच्छे से यूज करेंगे। याद रखना लॉन्ग पीरियड कर्व को हम वो भी बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? दैट इज द यू नो envelope curve. Okay, now coming back to the few question, this is all about the cost, ठीक है। यहाँ पे डिसइकोनॉमीज और इकोनॉमीज सेम है, ये डीप यू शेप होगा। कमिंग बैक टुवर्ड्स द क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो एक चीज आप ऑनलाइन पेपर है तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको शायद ना मिले, मुझे नहीं पता मिलेंगे कि नहीं। ग्रुप में कुछ क्वेश्चन पेपर्स शेयर हो चुके हैं, एक तो मैंने भी शेयर किया था। आप वैसे SOL की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, DU की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर। आप BA प्रोग्राम सेमेस्टर 1 का देख सकते हो, BCom प्रोग्राम सेमेस्टर 5 का भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, क्योंकि दोनों पेपर सेम है, सिलेबस सेम है।
तो दोनों के क्वेश्चन पेपर एक जैसे ही वो ऑलमोस्ट बनते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, आपको वैसे भी पार्ट भी ज्यादा मिल जाएगा कैलकुलेशंस करने के लिए। तो another thing what you have to do is that you have to stress on definitions. Let's suppose इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल what is the relationship between short period cost curves. सबसे पहले क्या डिफाइन करोगे, मैंने ले रही हूं कि द रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट पीरियड कॉस्ट कर्व्स आ रहा है। सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कॉस्ट कर्व। कॉस्ट क्या होती है? शॉर्ट पीरियड कॉस्ट मींस कुछ फैक्टर फिक्स है, उसकी फिक्स कॉस्ट, कुछ वेरिएबल है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अनदर थिंग, उसके बाद क्या बताओगे, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट बना दोगे, एवरेज कॉस्ट बना दी, कर्व बना दिया तीनों के, ठीक है। उसके बाद उसका रिलेशनशिप बना दिया कि जब एसी डिक्रीज करती है एमसी भी डिक्रीज करती है, एबीसी भी करती है, जब दोनों इंक्रीज करती हैं तीनों करती हैं, ठीक है। मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी पे एसी इक्वल है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी पे एमसी इक्वल है। ये भी वेरी मच क्लियर है, इसको भी आप साथ में लिखोगे। मींस एसी यू शेप, एबीसी यू शेप, एमसी इज आल्सो यू शेप, मिनिमम पॉइंट पे तीनों इक्वल है। एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, मैं इसी को ही बना देती हूँ शॉर्ट पीरियड में ही। फॉर एग्जांपल दिस इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, एसी शॉर्ट पीरियड का ही है, अब ये मत समझना लॉन्ग पीरियड वाला है, ठीक है। दिस इज एबीसी, एमसी, दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। ये आप डायग्राम बनाना, उसमें एक्सप्लेन करोगे एएफसी हमेशा डिक्लाइन करती है, एसी एबीसी दोनों यू शेप्ड है, दोनों का डिफरेंस क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी के इक्वल है, मिनिमम पॉइंट को एमसी के इक्वल है। एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। सिंपल टर्म्स में, सिंपल से बहुत सिंपल टर्म्स की बात करूं तो कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करो, उसकी डेफिनेशन दो, के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा एंड लास्ट में कंक्लूजन दो। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, क्योंकि अब कंफर्म्ड है हमारे पास ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर है, तो उसका पैटर्न आपके पास सिंपल 7 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 4 कर सकते हो। पार्ट ए पार्ट बी ध्यान रखना, ये ना हो कि एक क्वेश्चन का पार्ट ए कर रहे हो दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बी कर रहे हो, नहीं ये मत करना, ठीक है। दोनों कोई पेपर लो, क्वेश्चन पेपर लो, 4 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लिखने का पैटर्न, एक फर्स्ट पेज जो है उसमें अपना नेम, रोल नंबर, नेम ऑप्शनल है शायद इस बार नहीं होगा, एक पेपर कोड यूपीसी भी बोलते हैं, वो क्वेश्चन पेपर भी होगा, आपके रोल नंबर पे भी होगा। यूनिक पेपर कोड नंबर, डेट ऑफ द पेपर, पेपर का नाम क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं दोगे आप, ठीक है। हर आंसर शीट पे आप अपना रोल नंबर मेंशन करोगे, राइटिंग में चाहिए हमें, वो टाइपिंग वाली नहीं, हर आंसर शीट पे आप अपना रोल नंबर मेंशन करोगे। क्वेश्चन लिखो, नीट एंड क्लीन क्वेश्चन लिखना, डायग्राम्स प्रॉपरली स्केल से बनानी है। अब आप ये मत पूछना बहुत सारे स्टूडेंट मैम पेंसिल से बनाए या पेन से, दैट इज योर विश, नीट एंड क्लीन डायग्राम्स शुड बी देयर, जितना नीट एंड क्लीन होगा अच्छा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आए, इंट्रोडक्शन, उसमें मेन पार्ट क्या है एंड कंक्लूजन, जहां रिक्वायर्ड है टेबल डायग्राम सब दो। इकोनॉमिक्स के पेपर में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है,
सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग मैम कितने पेज लिखने हैं, नहीं, मुझे पेज नहीं पूछो, जो रिक्वायर्ड है, जो मैंने आपको पैटर्न बताया, इसमें आपका आंसर बहुत अच्छे से बन जाएगा। मींस अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4-5 पेज तो ऑफकोर्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। पेपर पे आप क्वालिटी अच्छी देना, लाइक डायग्राम्स एंड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप प्लीज न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। आई होप निधि मैंने आपको रिप्लाई कर दिया कि पेपर में कैसे लिखना है, और हर क्वेश्चन का अलग आंसर शीट्स बनेंगी और उसको अलग से अपलोड करोगे, ठीक है। निधि आई होप मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है, एंड यू गाइज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। एनी क्वेश्चन गाइज? अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन डू वन थिंग, आप मुझे टीम्स पे मैसेज छोड़ देना, जब भी मेरे पास टाइम लगेगा आई विल रिप्लाई, ठीक है। अभी मेरे पास क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सो जैसे ही क्वेश्चन आप उसमें छोड़ देना तो आई विल रिप्लाई। ओके गाइस, okay guys, take care, have a nice day, bye bye.